So we completed partnership deed in the last class. Anyone have any doubt in that topic? Anyone have any doubt in that topic? Raise your hand. Sab clear hai point partnership deed ka? So today we are going to complete the other topics, right? Data, partnership, types of partnership firm, types of partnership. And the second one is what is the procedure of registering the partnership. Okay. So before starting that topic, who is going to tell me about the partnership deed? Anyone? Who is going to tell me about the partnership deed? Okay, Pratyay, yes. Yes, ma'am. Ma'am, partnership deed. What is the meaning of that? Ma'am, a partnership deed is a partnership agreement between the partners of the firm which outline the terms and condition of the partnership between the partner of the firm. And मैम इसका मैम कुछ पार्ट है मैम, जैसे कि इसमें क्या क्या होता है मैम, तो वो मैम what are the various contents? No, first of all tell me that the partnership deed is in written form or in oral form? मैम oral form मैम दोनों में होता है, written और oral दोनों में होगा। Partnership deed is always in the written form, beta. How could you tell, मतलब how could something which is verbal you can say that it is in the oral form? Agreement can be in the both form, oral form and written form, but partnership deed is in a written form. Okay, ठीक है. Next, Mahi, what are the various content of the partnership deed? The various contents, ma'am, nature of firm. Two points. Nature of firm, nature of firm's business, and the principal place of business, duration of partnership. Okay, Mahi, good. Next, Anisha. Yes, ma'am. What are the other content? Name and address of partners, amount of capital, a rate of interest which the partners would have to pay if they will withdraw any amount or capital. Okay, Gaurav, next point. Other points? Ma'am, mode of valuation of goodwill and nature of firm. Okay, next, Manish. Yes, ma'am. Profit and the profit ratio, sharing ratio during a partnership of, if any. Okay, next, roll number 75, batch 1. Yes, ma'am. Settlement of disputes, rate of interest, any on capital and drawing. Okay. Next, Monica. Monica. Yes, ma'am. बताइए other points. Ma'am, profit sharing ratio. Okay. ठीक है. चलिए. So I got partnership form. See, according to Partnership Act 1932, partnership का registration करवाना, that is totally optional. If you want to register your firm, that is okay. If you don't want to do that, that is also fine. So in this case, what we can say that some benefits are provided if the partnership firm is registered. अगर पार्टनरशिप फर्म आपका रजिस्टर्ड है तो वो कुछ बेसिकली लीगल एक बोल सकते हैं कि कह सकते हैं कि अगर कल को कोई भी इश्यूज आते हैं तो दूसरे थर्ड पार्टी को आप इजीली शू कर सकते हो, यानी उस पे केस दायर कर सकते हो. लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, सो हाउ कुड यू टेक द एक्शन इन द फ्यूचर? सो रजिस्ट्रेशन के कुछ प्रोसीजर है पार्टनरशिप फर्म के. आप चाहें तो करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, आप चाहें तो आप नहीं भी करवा सकते हैं. दैट इज टोटली ऑप्शनल. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप जो है बेसिकली उसके रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं और क्या क्या कंटेंट है और प्रोसेस क्या है उसके. तो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो जो आपका रजिस्ट्रेशन है, आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है, यस ऋतिक, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम, पिछले क्लास में आप बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप बता रही थी मैम. 2 पॉइंट इसमें बताए थे मैम. इट कंट्रोल राइट एंड रिस्पांसिबिलिटी, रेम्युनरेशन. ओके, पार्टनरशिप डीड में यस मैम, बेनिफिट बता रही थी. So what are the various importance or advantages of partnership deed? Let's complete this topic and then we'll move toward the registration. First one जो लिख लिया था, it controls and monitors the responsibilities,
and liabilities of all the partners. Because partnership deed is the written agreement, it already clarify responsibility, works which is assigned to each partners. That is already mentioned in the partnership deed. So in the future कोई confusion ना हो इसके लिए, और responsibility क्या है सबको वो clear हो. तो partnership deed से this one is the first benefit, that it controls and monitors the rights and responsibilities of the each partners. हर एक partners की rights और responsibility को basically clarify करता है. Second जो होगा, what is the second benefit of partnership deed? It avoid disputes between the partners. It avoid disputes between the partner. It avoid disputes between the partner. यानी कि कल को अगर कोई भी तरीके का कंफ्लिक्ट, लड़ाई या कोई भी ऐसा इश्यूज किसके बीच में आए, पार्टनर्स के बीच में आ सकता है, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप डीड विल बी वर्क एज एन एविडेंस एंड इट विल प्रूव दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स इज मेंशन्ड अबाउट द पार्टनर्स वर्क्स, अबाउट द एवरी एग्रीमेंट, जो भी आप लोगों ने तय किया है मिलके, सारे कंसेंट ऑलरेडी रिटन होगा पार्टनरशिप डीड में. तो कोई डिस्प्यूट अराइज के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? पार्टनरशिप डीड. ठीक है, सो इट विल हेल्प टू अवॉइड द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स. अगर कोई प्रूफ नहीं होता है तो देखो, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग सबका बिहेवियर वैरी करता है, चेंज करता है, सब अपने पर्सनल बेनिफिट्स को देखते हैं. आगे चल के हो सकता है कि कोई पार्टनर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई डिसऑनेस्टी वगैरह हो करे, बेसिकली ऐसा हो सकता है. तो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में आपका पार्टनरशिप डीड जो है वो डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इट विल आल्सो हेल्प इन सॉल्विंग दैट डिस्प्यूट. द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट राइट, avoid confusion on profit and loss distribution ratio. Avoid confusion on profit and loss distribution ratio among the partners. Avoid confusion on profit and loss distribution ratio among the partners. चलिए मान लीजिए कि हम जो 4 पार्टनर्स थे, माही, गौरव एंड प्रत्यय, अनीशा, ये चारों बच्चे हैं. ठीक है, मतलब ये चारों पार्टनर्स हैं, ये मेरे लिए स्टूडेंट हैं, बट दीज ऑल 4 आर पार्टनर्स. ठीक है, अब ये जो चारों पार्टनर्स हैं, इसमें से कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक पार्टनर कहे कि भाई मेरा रेशियो जो है वो दैट इज मोर देन व्हाट एवर इज यू आर थिंकिंग. लाइक अब दूसरे पार्टनर्स को कहे कि नहीं, मेरा तो ये था ही नहीं रेशियो, मेरा तो रेशियो ये तय हुआ था. कंफ्यूजन कैन बी अराइज, और ऐसे बात भी ओरली कोई भी चीज पे यू कांट ट्रस्ट, राइट. तो ये कंफ्यूजन ना हो कि भाई मेरा कितना प्रॉफिट है, मुझे कितना शेयर मिलने वाला है, इसके लिए पार्टनरशिप को यूज कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड कंफ्यूजन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस. लिख लिया सबने? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो अमॉन्ग द पार्टनर्स. नेक्स्ट पॉइंट, individual partners responsibilities are mentioned clearly. इंडिविजुअल पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर मेंशन्ड क्लियरली. यानी अगर कोई भी इंडिविजुअल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर माही है, शी इज अ वन इंडिविजुअल इन द पार्टनरशिप में, एक इंडिविजुअल है. ठीक है, तो इसके सारे जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसको सब क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, मिलजुल के करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकेले इंडिविजुअल जो डिपार्टमेंट संभालना है माही को, एग्जाम्पल के लिए शी इज बेसिकली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस. ठीक है, एंड शी, इसको क्या क्या चीजें करनी है, फंड रिलेटेड चीजें, ROI रिलेटेड चीजें, सब कुछ माही को क्लियर होगा बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप डीड. सो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड. ठीक है, क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप डीड ऑल्सो डिफाइन, सी दिस एडवांटेजेस इज समथिंग विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट. ठीक है, सो इफ एडवांटेजेस याद नहीं होता है, अगर कंटेंट भी याद है कि क्या क्या चीजें होती हैं, तो यू कैन इजिली मेक द एडवांटेजेस ऑफ दैट, राइट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, पार्टनरशिप डीड ऑल्सो डिफाइंस अ रेम्यूनरेशन और सैलरी ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, यानी कि
और इसमें इफ एनी वाला केस वही होगा कि अगर कोई पार्टनरशिप दिखे, अगर कोई फर्म है और वो पूरा का पूरा प्रॉफिट पे चल रहा है, कि अगर हमें प्रॉफिट आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो ये 4 पार्टनर्स थे, इन लोगों का क्या था बेसिकली एम, कि भाई हम एक बुटीक को चला रहे हैं। अब ये बुटीक चला रहे थे चारों पार्टनर्स। अब इनका था कि भाई हमारा कोई शेयरिंग जो होगा वो कोई फिक्स सैलरी नहीं होगा, बल्कि हमारा प्रॉफिट से हमें जो भी आएगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा, विल डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि मंथ में 1 लाख रुपए आ रहा है, इनको पैसा मिल रहा है, मतलब एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा। प्रॉफिट कब मिलेगा? जब आपके सारे एक्सपेंसेस को जब आप एक बार कैलकुलेट करोगे, जो फाइनल प्रॉफिट आपके हाथ में आएगा, दैट इज 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब उस 1 लाख रुपए में अगर हम इक्वल बांटेंगे तो दैट इज 25 के ईच, राइट। बट इन द केस अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर की सैलरी आपने फिक्स की हुई है, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपने प्रत्येक की सैलरी फिक्स कर दी 40,000 रुपीज। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब ये सैलरी जो है अगर फिक्स्ड है, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पर प्रॉफिट हो या लॉस हो, यू हैव टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट 40,000। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पर सैलरी किसी एक पार्टनर का बाकी सबके कंसेंट से फिक्स है, तो वो भी मेंशन आपके किस में होगा? पार्टनरशिप डीड में। सो यानी कि आप बाद में प्रत्यय को बाकी पार्टनर्स ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आपको सैलरी नहीं मिलेगा, क्योंकि सैलरी जो है दैट इज ऑलरेडी रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दैट विल गिव यू फिक्स्ड अमाउंट, और वो फिक्स्ड अमाउंट प्रत्यय को ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? सो इन द केस ऑफ सैलरी एंड रेम्यूनरेशन इफ दैट इज फिक्स्ड, अगर वो फिक्स है, तो ऐसे केस में वो भी आपको मतलब सैलरी से रिलेटेड भी कोई क्वेरी और कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन सॉल्व इट थ्रू पार्टनरशिप डीड। क्लियर हो गया? सारे एडवांटेजेस जितने भी करवाए सब क्लियर हो गए सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. India, the partnership is regulated by Partnership Act 1932. ठीक है, पर्सन सब साथ में 3-4 लोग मिलके पार्टनरशिप फर्म को शुरू करते हैं। पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनरशिप डीड हो सकता है, दैट इज एग्रीमेंट, और इसमें अब हम इसको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस प्रोसीजर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ पार्टनरशिप इज वेरी इजी, ठीक है, एंड दैट इज टोटली ऑप्शनल। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एप्लीकेशन में क्या क्या कंटेन होने चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ कंटेन्स आर रिक्वायर्ड इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो फर्स्ट पॉइंट इज द नेम ऑफ द फर्म, यानी फर्म का क्या नाम है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, नेम ऑफ द फर्म। The second one is the principal place of the basically business, जो ऑफिशियल एड्रेस है आपका। मुझे लगता है कि पार्टनरशिप डीड की तरह ये जो सारी चीजें वही होंगी। ठीक है, नेम ऑफ द अदर प्लेसेस वेयर द फर्म्स कैरी ऑन द बिजनेस, यानी कि यहाँ रजिस्ट्रेशन में कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या है? देखिए, पहला चीज कि आपके फर्म का क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन में भी द सेम थिंग इज रिक्वायर्ड, द नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है। सेकेंड, प्रिंसिपल प्लेस, इट मींस द ऑफिशियल एड्रेस ऑफ योर बिजनेस। द थर्ड वन इज कि अगर आप ऑफिशियल एक जगह पे तो आपका ऑफिशियल एड्रेस है, उसके अलावा अगर आपने कहीं और भी एक्टिविटीज कर रहे हो, आप कहीं और भी आपके बिजनेसेस के कुछ ब्रांचेस वगैरह हैं, तो यू हैव टू मेंशन दूस प्लेस एज वेल, मतलब उनके बारे में भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका फर्म जो है कहीं और भी कैरी करता है बिजनेस, यानी और भी कहीं से आप बिजनेस चला रहे हैं, तो यू हैव टू मेंशन अबाउट दैट ऑल्सो। द नेक्स्ट वन इज द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, लाइक मान लीजिए कि माही है, ठीक है, she joined on 20th June and the other partners joined on 21st, 20th, तो ये पार्टनर्स जो है इन्होंने कब फर्म को ज्वाइन किया है, what is the joining date, that is also need to be mentioned in registration process। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो जो रिक्वायर्ड है मैं उसके बारे में बता रही हूँ, कंटेंट क्या क्या होना चाहिए। नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि सारे पार्टनर्स का नाम और उनका क्या परमानेंट एड्रेस है, यानी उनका जो परमानेंट एड्रेस होगा, जैसे एग्जांपल जहां पर बोलते हैं अपना घर, ऑफिशियल नेटिव प्लेस, जो परमानेंट आपका एड्रेस है, यू हैव टू मेंशन दैट आल्सो, राइट। द नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी, मतलब अगर इन केस अगर कोई ड्यूरेशन है और अगर आपने कोई तय कर रखा है, कोई टेम्पररी पार्टनरशिप फॉर्म अपने शुरू किया है, तो ऐसे केस में व्हाट यू नीड टू डू, इन दैट केस यू हैव टू मेंशन दैट एज वेल इन द registration procedure of partnership. So what are the 5 things which is required for the, what are the 5 things which is contains in the application of the partnership registration procedure?
क्या क्या वो 5 चीजें हैं? पहला है नेम ऑफ द फर्म, principal place of the business, as well as the other places where the firm carries the business. The fourth one is date when the partners joined this firm. The next one is name in full and permanent address, मतलब नाम, पूरा नाम और permanent address of each partners. And the last one, sixth one, that is duration of partnership if any. यानी अगर कोई duration है तो आप उसको भी mention कर सकते हैं, ठीक है। और जो एप्लीकेशन होगा, दैट एप्लीकेशन विल बी साइंड बाय ईच पार्टनर्स, यानी जितने पार्टनर्स फर्म में प्रेजेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ द 4 पार्टनर्स आर प्रेजेंट, दे नीड टू साइन ऑन व्हाट, दे नीड टू साइन ऑन एप्लीकेशन। क्लियर है? रजिस्ट्रार जो होगा, अगर रजिस्ट्रार क्या होता है, जहां पर बेसिकली रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आपका होता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रार के पास अगर आप जाओगे, ठीक है, तो अगर वो सेटिस्फाइड होगा विद द स्टेटमेंट, यानी कि जो भी आपने मेंशन किया है उससे अगर वो सेटिस्फाई है, तो वो आपकी एंट्री कर देगा रजिस्टर ऑफ फर्म में, ठीक है। फर्म में, आपके रजिस्टर फर्म में आपकी एंट्री कर देगा। तो फर्म जो है एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद उसको रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। क्या इशू करेगा? सर्टिफिकेट इशू करेगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन जो है एक कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा कि आपका पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करता है, यानी योर एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी डिफाइंड बाय व्हाट? डिफाइंड बाय द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ पार्टनरशिप, बाय दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार क्या होता है? बेसिकली जो आप फर्म्स को रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। कंपनी में भी पहले ऐसे ही रजिस्ट्रार होते थे, अभी भी रजिस्ट्रार प्रेजेंट है, बट बिकॉज अब एमसीए ने सब कुछ क्या कर दिया, ऑनलाइन थ्रू कर दिया, आप ऑनलाइन ही नेम वगैरह सब एंटर कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं जो फिजिकल वर्क था, आपको हर जगह रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता था, अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर जो रजिस्ट्रार है, इफ ही सेटिस्फाइड बाय ऑल द स्टेटमेंट which you mentioned in the application, after that what he will do, he will just register your firm and they will provide you a particular certificate about the registration. It will be a conclusive or it will be a proof or evidence about the firm that is existing, ठीक है। यानी कि आपके फर्म के एग्जिस्टेंस के बारे में that will be your proof, ठीक है। अब आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आफ्टर जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फर्म का, तो यू कैन, इफ एनी काइंड ऑफ चेंजेस इफ यू वांट, यू कैन मेंशन इट टू द रजिस्ट्रार एंड यू कैन इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार। यानी अगर एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर आपको कुछ चेंजेस करवाने हैं, कोई बदलाव करवाने हैं, तो उसके लिए भी आप कहाँ जाइएगा? रजिस्ट्रार के पास जाइएगा। फिर उसके लिए कुछ चेंजेस के लिए, कैसे अभी हम पैन कार्ड के लिए कभी अप्लाई करते हैं और कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो फिर उसको चेंज करवाने के लिए वी हैव टू अप्लाई इट वंस अगेन, ठीक है, एक प्रॉपर उसको चेंज करवाने के लिए अप्लाई करते हैं। सेम वैसे ही अगर आपको लगेगा कि पार्टनरशिप फॉर्म जो रजिस्टर हुआ है उसमें कुछ बदलाव और चेंजेस की जरूरत है, देन वी हैव टू विजिट और वी हैव टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार वंस अगेन, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट में पूरा समझ में आया कि बेसिकली अगर हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो हमें एक एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, इसको ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अब ये सब चीजों को लिखिएगा, ठीक है। ये जो मैंने आप लोगों को बताया, यस मैम, सबको समझ में आया कि बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? यस अभिनव? मैम रजिस्ट्रार कौन होता है? Now, procedure for registering a partnership firm. फर्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसके बारे में भी मैंने बताया आपको। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में वही एप्लीकेशन को आपको फिल करना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें मेंशन होंगी जिसके बारे में मैंने बताया, नेम ऑफ द फर्म, ठीक है, नेम, फुल नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर परमानेंट एड्रेस, ड्यूरेशन क्या होगा पार्टनरशिप का वो लिखना है। उसके अलावा फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ऑफिशियल एड्रेस के बारे में, कब आप पार्टनर्स कब उन्होंने ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग डेट क्या है, तो ये सारी चीजें एप्लीकेशन में होंगी। तो फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसीजर ऑफ रजिस्टरिंग द पार्टनरशिप फर्म, द फर्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब इसमें पॉइंट्स लिखते जाओ, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। देखिए, सो फर्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में आगे लिखिए, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में, an application form has to be filled
an application form has to be filled to the registrar of firms, to the registrar of firms. An application form has to be filled. एक minute, filed, sorry, it's not filled, it's filed. Application form has to be filed, filed है, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी. Filled is something FILLED, it's filed. वही मैं बोलूँ कि registrar with a file. So an application form has to be filed to the registrar of the firms, to the registrar of the firm of the state in which the firm is situated, along with prescribed fees. An application form has to be filed. To the registrar of firms, of the state in which the firm is situated, along with prescribed fees. अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर भी आपका फर्म सिचुएटेड होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो 4 ये पार्टनर्स थे, इन्होंने पटना में अपना फर्म को शुरू किया, तो आप बिहार स्टेट में जो भी रजिस्ट्रार आपका प्रेजेंट है, आप वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन कराइएगा, ना कि आप दिल्ली मुंबई यहाँ चले जाइएगा. जिस स्टेट में आपने बिजनेस को शुरू करना है, फर्म को शुरू करना है, वहीं पर आपको क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है. ठीक है. और साथ साथ कुछ मिनिमल फी वगैरह जो है वो देना होता है. ठीक है. जैसे नाम के लिए मैंने एमसी का वो फॉर्म ओपन किया था, तो दे आर टेकिंग 1000 रुपीज फॉर नेम के लिए से भरना होता है. तो हो सकता है कुछ ऐसी बहुत मिनिमल अमाउंट यू हैव टू पे एज अ फी फॉर रजिस्ट्रेशन. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए आगे इसी पॉइंट में लिखिए आगे, द रजिस्ट्रेशन application has to be signed. The registration application has to be signed and verified. By all the partners. यानी जो भी आपका एप्लीकेशन होगा वो सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, साइन करेंगे. ठीक है. अब इसमें वही सारी जो डिटेल्स था ना, जो 6 मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताया था, 6 पॉइंट जो क्या क्या एप्लीकेशन में होगा, तो वही पॉइंट वही सारी होंगी कि दिस एप्लीकेशन कंटेन दीज बेसिक पॉइंट्स या दीज बेसिक मैटर, या ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे लेगा. तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिख दीजिए रेफर टू बुक. ठीक है. तो वो 5 और 6 पॉइंट बुक से अपना देख लीजिएगा. नोट्स में ये चीज जरूर लिखिए. ओके. नेक्स्ट आगे Step 2. ठीक है. Selection of name of the partnership firm. ठीक है. खैर आप जैसे ही एप्लीकेशन फिल कीजिएगा वैसे ही आप पार्टनरशिप फर्म का तो नाम डालिएगा ही उसमें, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं कि नाम कैसा होना चाहिए. यानी पार्टनरशिप फर्म का जो आप नाम रखेंगे उसमें कुछ कंडीशंस जो हैं वो क्या क्या कंडीशंस लगेंगे उस पे ध्यान देते हैं. ठीक है. सो एनी नेम कैन बी गिवन टू द पार्टनरशिप फर्म. कोई भी नाम आप पार्टनरशिप फर्म में दे सकते हैं. सेकेंड पॉइंट सबने लिख लिया, सिलेक्शन ऑफ नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. ठीक है. कोई भी नाम आप पार्टनरशिप फर्म में दे सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ता है व्हेन यू आर सिलेक्टिंग द नेम. और वो क्या क्या कंडीशंस हैं. ठीक है. तो पॉइंट लिखते जाइएगा, इसमें पॉइंट्स लिखते जाइएगा. लिखिए, एनी नेम कैन बी गिवन टू अ पार्टनरशिप फर्म. Any name can be given to a partnership firm, but certain conditions are required. While selecting the name. ठीक है. कोई भी नाम, लेकिन कुछ कंडीशंस. अब पहला कंडीशन लिखिए. The first condition,
the name should not be too similar. Name should not be too similar or identical to an existing firm doing the same business. The name should not be too similar or identical to an existing firm doing the same business. यानी कि अगर आप जो भी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं, नाम रखते हैं, जैसे मान लीजिए XYZ आपने कोई भी नाम रख लिया, ठीक है। अब ये 4 जो पार्टनर्स हैं हमारे क्लास के, जो ठीक है क्लास से हमने जो 4 पार्टनर्स चूज किए हैं, अब इन चारों पार्टनर ने डिसाइड किया कि भाई हम कोई बुटीक का नाम ऐसा रखते हैं, ठीक है, कुछ भी रख दिया इन्होंने नाम। अब वो नाम जाकर मैच कर गया उसी टाइप के बिजनेस, मतलब कोई बुटीक ही चला रहा है और सेम नाम से कोई बुटीक चला रहा है, अब उन्होंने भी सेम नाम रख दिया। ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आगे नहीं होगा। व्हेन द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन जब होगा, वो आपके फॉर्म को रजिस्टर नहीं करेंगे। फर्स्ट दे विल टेल यू टू चेंज द नेम। सो नेम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग फॉर्म अगर उसी नाम से चल रहा है तो आपके फॉर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा, आपका पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर नहीं हो पाएगा। सो द नेम शुड बी डिफरेंट, ठीक है, नेम शुड बी डिफरेंट अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करा रहे हैं। Next, the name should not contain, second condition क्या है, the name should not contain words like, the name should not contain words like emperor, crown, emperor, 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 crown, 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 emperor, crown, impress, EMPRESS, impress, या impress है वो IM वाला नहीं है, ठीक है, EM वाला है। impress, empire, 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 or any other words which show sanction or approval, of the government. The name should not contain word like emperor, crown, impress, empire, or any other words which shows sanction or approval of the government. इसका मतलब ये है कि आप ऐसा कोई नाम नहीं रखना है आपको जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। समझ में आ रही है बात? गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई नाम नहीं रखिएगा। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म का आप नाम नहीं रख दीजिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुटीक नाम नहीं रख सकते हो आप, समझ रहे हो? You never use such words which is according to government हो। अब बहुत सारी कंट्रीज में आज भी क्या है, मोनार्की सिस्टम चल रहा है आज भी। अब इस तरीके की कोई भी चीज को नाम आप नहीं रखोगे जो गवर्नमेंट वगैरह से और हायर अथॉरिटी से या लीगल और अथॉरिटेटिव चीज से रिलेटेड हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो नाम होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए और नाम जो होना चाहिए वो सुटेबल होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट से या फिर ऐसे नाम नहीं होने चाहिए जैसे लगे कि गवर्नमेंट के द्वारा इस नाम को सैंक्शन किया गया है या ये फॉर्म जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए किसमें, नाम में। ठीक है, थर्ड स्टेप, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। See, if the registrar will be satisfied, then he will basically register your firm. ठीक है, he will register the firm in the register of firm. He will register the firm in the register of firm. रजिस्टर करेगा आपके फॉर्म को रजिस्टर में। ठीक है,
एंड इश्यू करेगा आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और जो रजिस्टर ऑफ फर्म जो होगा वो क्या कंटेन करेगा, आपका डेट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल फर्म, सब कुछ का आपका जो भी होगा डेट इंफॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। कुछ पेमेंट वगैरह रिलेटेड है, फी वगैरह अगर आपने दिया है तो वो सारे आपके सर्टिफिकेट में मेंशन करेंगे, ठीक है। और ये सब कुछ आपको फाइनली जो है, ये जो एप्लीकेशन है वो एक बार में जाकर के फाइनली आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जब आपका एप्लीकेशन सबमिट या डिपॉजिट या फिर रजिस्टर हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आई थिंक वी डोंट नीड टू बेसिकली इलैबोरेट और राइट समथिंग इन दिस पॉइंट, कुछ लिखने की जरूरत है। रजिस्ट्रेशन समझ में आ गया कैसे कैसे होगा, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन में, हम वो करेंगे। क्लियर हो गया सबको, सारे स्टेप्स किस तरीके से फर्म को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हम लोग, सबको समझ में आ गया पॉइंट्स। आगे लिखिए, व्हाट आर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए पार्टनरशिप में। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। दिस वन इज द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहला इसमें आपका सबसे फर्स्ट जो चाहिए वो क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जो उसका जो सबसे पहला स्टेप था, एप्लीकेशन आपको भरना है। तो एप्लीकेशन चाहिए इसके लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, फॉर्म 1, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, मतलब वो एप्लीकेशन के साथ कुछ आपको डॉक्यूमेंट भी अटैच इंक्लूड करके देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा, उसके अलावा सेकेंड चीज क्या करना पड़ेगा, एक लिखिए नेक्स्ट, सर्टिफाइड ओरिजिनल कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, सर्टिफाइड ओरिजिनल कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब अब आपका जो पार्टनरशिप डीड बना हुआ है, यानी जो आपका एग्रीमेंट है, उसका कॉपी भी आपको देना पड़ेगा, किसको, बेसिकली उस रजिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या चाहिए, और क्या क्या चीजें चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट, स्पीसमैन ऑफ एन एफिडेविट, स्पीसमैन ऑफ एन एफिडेविट। एफिडेविट पता है क्या होता है, एक डिक्लेरेशन की तरह काम करता है एफिडेविट, समझ में आई बात। जैसे कई बार मैं बताती हूँ एफिडेविट क्या होता है, जैसे कि कई बार होता है कि मान लीजिए आपको कोई सर्टिफिकेट डिपॉजिट करना है, जैसे मैं गई, मुझे कोई इनकम का सर्टिफिकेट देना है, रोल, जो भी बच्चे म्यूट है प्लीज म्यूट रखिए खुद को। तो उसमें क्या होता है कि आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन देते हो कि जो भी चीजें मैं बता रही हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, दैट इज ट्रू। तो उसके लिए एफिडेविट लगता है, आपको जाना पड़ता है कोर्ट, या फिर ऐसे बाहर भी बनते हैं बहुत जगह पे, ऑफिसेस वगैरह बनते हैं, जो लीगल ऑफिसेस वगैरह होती है, वहां पर जाइए, एफिडेविट बनवाइए, ठीक है। आपको लॉयर एफिडेविट बनवा के और आपको वो पकड़ा देगा, प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर भी एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी। और एफिडेविट किस लिए चाहिए, इसलिए चाहिए कि जो पार्टनरशिप डीड है उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन आपने लिखे हैं वो ट्रू है, उसके लिए आपको एफिडेविट चाहिए। तो थर्ड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, स्पीसमैन ऑफ एफिडेविट, स्पीसमैन ऑफ एफिडेविट सर्टिफाइंग, स्पीसमैन ऑफ एफिडेविट certifying all the details mentioned in the partnership deed, and documents are correct. Specimen of an affidavit certifying all the details mentioned in the partnership deed and documents are correct. यानी जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है कहाँ रजिस्ट्रार को, वो सारे डॉक्यूमेंट में आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स सारे ट्रू हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने कहीं डुप्लीकेट क्वालिफिकेशन के बनाकर उसमें आपने लगा दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस एफिडेविट, कि द एफिडेविट विल give work as a proof that whatever document you deposited, whatever is written in the partnership deed, these all things are correct. मतलब ये सारे क्या है, करेक्ट हैं, सही है। तो एफिडेविट रिक्वायर्ड,
द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ में कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा? व्हाट इज द नेक्स्ट बेसिकली डॉक्यूमेंट? पैन कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। मैं पहले बता दूं, द पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इज द लाइफ लाइन ऑफ एवरीथिंग। जस्ट हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ द पार्टनर्स, पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ द पार्टनर्स। यस प्रतीक? यस। सो द नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने, पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ द पार्टनर्स, पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो जरूरत पड़ेगा वो क्या होगा आपका? दैट विल बी द काइंड ऑफ, बोल सकते हैं एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। जो आपका ऑफिशियल एड्रेस है उसके बारे में एक ऑफिशियल जो आपका एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड होगा। एड्रेस प्रूफ के लिए या तो आप एड्रेस प्रूफ का आपका रेंट अग्रीमेंट या लीज वगैरह का अग्रीमेंट अगर कुछ भी ऐसा है तो यू कैन ऑल्सो डिपॉजिट और यू कैन ऑल्सो सबमिट इट विद द बेसिकली मेन एप्लीकेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट वन पॉइंट है लिखिए, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस of business of the firm, of business of the firm, ब्रैकेट में लिखिए ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स और रेंटल के बाद आगे में ऐसे स्लैश देके लिखिएगा लीज अग्रीमेंट, रेंटल और लीज एग्रीमेंट। प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। ठीक है, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, यानी कि वही आपका एक तरीके से एड्रेस प्रूफ। अगर आपने कोई जो ऑफिस है वो कहीं लीज पे लिया हो या कहीं पर भी अगर आपने लिया हो तो उसके लिए जो एग्रीमेंट वगैरह बनता है ओनर के साथ, वो अगर एग्रीमेंट है तो आप उसको क्या कीजिएगा, आप उसको सबमिट कीजिएगा रजिस्ट्रार में, कहाँ? एप्लीकेशन के साथ। और यस, रोल नंबर 7 नंदिनी। मैम ओनरशिप डॉक्यूमेंट के बाद समझ में ओनरशिप डॉक्यूमेंट और रेंटल, RENTAL, रेंटल स्लैश LEASE, लीज एग्रीमेंट। लीज का मतलब बेटा क्या होता है पता है आपको? लीज का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब हम 99 साल के लिए, जैसे हम एक लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, तो यहाँ पर जो लीज हो या फिर अगर आपका कोई रेंटल एग्रीमेंट है तो उसको भी आप अपने एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट में दे सकते हो। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सबको क्लियर हो गया? रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? What are the documents which is required in the registration of the partnership firm, and what are the various steps of the partnership firm, registration of the partnership firm? ये दोनों टॉपिक सबको क्लियर हो गया? आगे चलिए, आगे जो पॉइंट है, आगे जो है आपका कि बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन होता है उससे क्या क्या बेनिफिट्स होता है और क्या क्या उससे मतलब एडवांटेजेस क्या है, और अगर आप नहीं करवाते हो रजिस्ट्रेशन तो क्या क्या चीज ऐसी है, क्या क्या ऐसे कंडीशंस है जिस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो एडवांटेजेस के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको लिखेंगे। अगर हम कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एक एविडेंस हो गया, आपके लीगल एग्जिस्टेंस के बारे में पता लग जाएगा कि आपका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंड चीज, अगर कभी भी कोई थर्ड पार्टी, मान लीजिए कोई सप्लायर या कोई भी, अगर उसने कोई भी आपके साथ डिसऑनेस्टी की, कुछ भी आपके साथ कोई ऑफेंस कुछ भी ऐसा होगा, तो ऐसे केस में यू कैन इजिली फाइल द केस अगेंस्ट हिम। लेकिन अगर आप खुद रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप फाइल केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक दो बेनिफिट्स है। आपका जो कोर्ट ऑफ बेसिकली लॉ है, जहां पर थर्ड पार्टी अगर कोई क्लेम कर रहा है तो आप जो है, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो
कहीं ना कहीं बहुत सारे आपके बेनिफिट्स होते हैं रजिस्ट्रेशन पे, आपका एक लीगल एग्जिस्टेंस हो जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है लेकिन लीगल एग्जिस्टेंस पता होगा, ठीक है। तो इसको जो भी इसमें जो पॉइंट्स हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। यस, रोल नंबर 39 अभिनव। मैम एफिडेविट जो बताई है वो तो मैम विटनेस के लिए नहीं यूज होता है, विटनेस स्टेटमेंट के लिए, मतलब कोर्ट के पर्पस। वो जो आपका एफिडेविट होता है बेटा, वो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। एग्जैक्टली आप वहां पर जाइएगा चारों पार्टनर और आप एफिडेविट बनवाइएगा, ठीक है। तो मैम इसको उसका फॉर्म में कैसे यूज होगा? क्या, किसमें? फॉर्म में मैम, कोर्ट में नहीं यूज होता है पर उसके कुछ रजिस्टर्ड लीगल ऑफिसेस होते हैं, वहां आप एफिडेविट बनवा सकते हो और उसमें लिखा भी होता है एफिडेविट यहाँ पर बनता है, ठीक है। वहां पर आप एफिडेविट एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह काम करेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, आपने जैसे मैंने बताया, मैंने एफिडेविट कब बनवाया था, जब मुझे मेरे फादर की सैलरी का इनकम स्टेटमेंट जमा करना था कॉलेज में। मेरे पास, मैं इनकम स्टेटमेंट घर छोड़ आई थी, तो मैंने क्या किया, फिर मैं गई एफिडेविट बनवाया, ठीक है। मेरे फादर ने उस पर साइन किया कि जो भी मैं बता रहा हूं उसमें एक आपका कोई भी आधार कार्ड या कोई आईडी उसमें लग जाएगा, अटैच हो जाएगा, आपका एफिडेविट रेडी। एफिडेविट जो होगा आपके रेडी हो जाएगा, आपको फिर दे दिया जाएगा। वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है और वो हमेशा एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको बनवाया जाता है और आपसे साइन लिया जाएगा। आप उसमें बोलिएगा कि मैं 1 साल में 5 लाख रुपए कमाता हूं, तो वो आपने एक डिक्लेरेशन दिया और कोर्ट ने उसको माना, साइन किया, और उसके साथ आपका लीगल, हाँ, एक स्टेटमेंट की तरह होता है। समझ में आ गई बात? यस। ओके।